Good evening and a warm welcome to today's program, Mazhab Nahi Sikhata, Weaponizing Religion, Maharashtra, Manipur, Uttarakhand, and the many Ram Navami processions. The COVID years took away the continuity of Karwai Mohabbat, which was started some years before that, during which, under the leadership of Harsh Mandar, and with many young men and women, lawyers, journalists, writers, cartoonists, we went to practically every single case of mob lynching across the length and breadth of this country. COVID came in between, but I'm happy to tell you that this year we have resumed the journeys of the Karwa. We've already been to Bihar to revisit some of the cases that we have seen before in our pre-COVID visits, and to see what else was happening in that state, which, as you know, is currently inviting the attention of several of the same forces that created the situation. Shortly, next week, we will also be visiting Manipur. We should have gone 2 months ago, but the situation wasn't ripe. We planned to leave on the 21st. Hopefully, we would be able to go to some of the places and talk to some of the people. In Karwa visits, we see the situation on the ground. We talk to the victims, the survivors. We discover strange truths of this country, that the police often arrest the survivors. That is one of the many situations, and that the police totally ignore touching those who killed. But now we know that in some cases, some of the killers have been indicted, and at least in 2 cases, sentenced. These are issues that will be discussed in the panel. My job was a very happy one, to welcome you to the Karwai Mohabbat's journey, this time by proxy, but an open invitation. Those who would like to accompany us, please do. Now we'll just film the short film of Karwan called Mazhab, which is also sort of an anthem of Karwan-e-Mohabbat. Thank you. मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, गुलिस्तां ये बुलबुलों का कांटों से दूर रखना, गुलिस्तां ये बुलबुलों का कांटों से दूर रखना, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मज़हब नहीं सिखाता। देखा था एक सपना, एक जहां
ऐसा भी है जहाँ जिक्र सिर्फ मोहब्बत का ही है। होश जब खुले तब ये जाहिर हुआ, शायद ये तो फकत एक सपना ही है। सारे जहां से अच्छी क्या यही वो ज़मीं है, बेकसूरों के खून से यूं जो रंगी है। इतना भी सस्ता इंसान का खून नहीं, नसीचो तुम इससे हुकूमत अपनी। सुर्ख रंग गुलिस्तां पर फैला दिया, क्यों सुर्ख रंग गुलिस्तां पर फैला दिया। फिर भी है मेरा यही बयान, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। गुलिस्तां ये बुलबुलों का कांटों से दूर रखना। गुलिस्तां ये बुलबुलों का कांटों से दूर रखना। May I now invite Mr. Harshmander, who will be moderating this panel, to invite our panelists and begin the panel discussion, please. Thank you. फ्रेंड्स, दोस्तों, साथियों, बहुत गंभीर बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। इस ऑडियंस में आज कम लोग हैं, लेकिन जो लोग आए हैं इसलिए आए हैं क्योंकि वो चिंतित हैं। The small excerpt of one or two hate speeches you saw here. The point is, what is this doing to our society? What is this doing to our country? How is the state responding? How should the state respond? We thought and this is a moment where actually we are seeing many parts of our country burn. There's Maharashtra in the west. There's Manipur burning for the last 3 months in the northeast. And more recently we've seen Uttarakhand tearing apart with a program for what can only be called ethnic cleansing. And before this, actually, through the Ram Navami period, we saw processions throughout the country in many parts. Each of them were used as opportunities to foster hate speech, hate sloganeering, and violence. Mr. Chandra Uday Singh brought out a report on this which he called Roots of Wrath,
and we have copies outside, and he said he's happy for any of you to take a copy home. So it was to reflect on some of this and its implications that we have this panel. One of our panelists, Ziaul Salam, was unable to come because he fell ill. But I invite the remaining members of our panel, Dr. Neera Chandok, who is one of the country's best respected political scientists, Bablu Laitongom, one of India's, in fact Manipur's, very highly respected human rights workers for the last 3 decades, although he looks only 3 decades old, but he's been working for the last 3 decades tirelessly in fighting for human rights and peace in Manipur. Amitabh Pandey, he's a retired civil servant, a member of a group, a gathering, a collective that many retired civil servants who are concerned about what is happening in our country have come together, called the Constitution Conduct Group. And Amitabh has, even within the group, been talking repeatedly about how important it is to document and respond to hate speech. And then, of course, we have a very dear, respected voice, in fact, a voice of conscience in these difficult times for the country, Professor Purvanand. And a much younger member of or 2 younger members of this panel. I invite Anmol Preetham, who has been reporting actually very courageously. In his sort of short career, he has been surrounded by mobs and threatened with lynching himself. And some of the most important reporting about the reality of what happened in Uttarakhand also came from him. And then, of course, I have my wonderful young Karma colleague, Imadul Hassan, whose film you saw. As I said, we're missing Ziaul Salam because he's fallen ill. So this is the panel, and we'll get started. उत्तराखंड में उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट छोटा सा टाउन है वैली में, पुरोला। पुरोला में हुआ ये कि 26 मई को एक पुलिस के सामने एक केस आया कि 2 लड़के एक लड़की को किडनैप करने की कोशिश कर रहे थे, और उसके बाद घर वाले आए, FIR दर्ज हुई। लेकिन वो पुलिस स्टेशन में थे और FIR दर्ज हुई, उस दौरान वहाँ के कुछ लोकल जर्नलिस्ट भी वहाँ थे, और सब कुछ हो गया, अरेस्ट हो गए। जो भी एक्यूज थे वो अरेस्ट हो गए, जो विक्टिम फैमिली थी वो अपने घर चली गई। शाम को वहाँ से प्रोटेस्ट शुरू हुआ, अगले दिन एक बड़ी प्रोटेस्ट हुई। फिर उस दिन क्या हुआ कि वहाँ के जो लोकल व्यापार मंडल के लोग थे, क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी थी, तो मुश्किल से 45 से 50 फैमिलीज़ थी वहाँ पे मुश्किल, और 15-16 हज़ार की टोटल पॉपुलेशन है। उसमें से 300-350 लोग मुस्लिम कम्युनिटी से हैं, और कुछ और बाहर से हैं, जैसे हरियाणा से और बाकी जगहों से, जो हिंदू कम्युनिटी से जाके वहाँ व्यापार वगैरह करते हैं, जिनकी दुकानें हैं। तो ये केस था, और इसमें एक एक्यूज्ड मुस्लिम कम्युनिटी से था और दूसरा हिंदू कम्युनिटी से। तो उसके बाद हुआ ये कि वहाँ के जो लोकल बीजेपी के लीडर्स थे, और कुछ ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बहुत लोकल, हाइपर लोकल लेवल पे काम करते हैं, लेकिन उनका जो पकड़ है, जो वहाँ एरिया में उनका पकड़ है, जो उनका सपोर्ट है, वो बहुत ज़्यादा होता है, चाहे वो पुलिस स्टेशन में हो या रूलिंग पार्टी से हो। तो वो लोग बहुत एक्टिव हुए, और अगले दिन एक कॉल दी गई कि
लव जिहाद के खिलाफ प्रोटेस्ट किया जाएगा। पहला प्रोटेस्ट हुआ, पीसफुल रहा, पुलिस चौकी के सामने हुआ। फिर उसके बाद एक प्रोटेस्ट हुई जिसमें क्या हुआ कि एक जर्नलिस्ट ने वहाँ के लोकल एक पोर्टल पे एक खबर अपलोड की कि पुरोला में हुआ लव जिहाद और हिंदू संगठनों में उबाल। उसके बाद से फिर वहाँ पर क्या होता है कि पहाड़ों में जैसे यूपी बिहार में होता है, गांव का एक सरपंच होता है। तो पहाड़ों में क्या होता है, एक सरपंच तो होता ही है, फिर सभी गाँव के सरपंचों का एक सरपंच होता है। तो सभी गांव के सरपंचों के एक सरपंच ने कॉल दी कि 27 को हम लोग एक बड़ी रैली करेंगे, और 27 को कॉल हुई कि 29 को हम एक बड़ी रैली करेंगे। और 27 को ही जो व्यापार मंडल था, जिसमें हिंदू कम्युनिटी के भी, मुस्लिम कम्युनिटी के भी और बाकी जो भी लोकल थे या जो बाहर के सब लोग थे, उसने क्या किया, व्हाट्सएप ग्रुप से मुस्लिम कम्युनिटी के जितने भी वहाँ पे शॉपकीपर्स थे उन सबको निकाल दिया और एक लेटर लिखा वहाँ के जो एसडीएम थे उनको कि ये लोग, हम लोग इनको व्यापार मंडल से निकालते हैं और ये लोग अब यहाँ पे व्यापार नहीं करेंगे और 29 के रैली में हम लोग भी शामिल होंगे। और जो वहाँ के बीजेपी के लीडर्स थे, बीजेपी के महामंत्री थे और आरएसएस से जुड़े हुए लोग थे, उन सारे लोगों ने 29 को एक बहुत बड़ी रैली प्लान की। और 29 को जब रैली हुई तो भीड़ बेकाबू हुई और 40-42 दुकानों को एकदम टारगेट करके तोड़ा गया। उनके दुकान के सामने से पोस्टर्स फाड़ दिए गए और पोस्टर्स फाड़े गए। मतलब अगर ऐसे 3 दुकानों के बीच में एक मुस्लिम की दुकान है, एक नीचे एक ऊपर है, तो नीचे वाले की भी तोड़ी गई, ऊपर वाले की भी तोड़ी गई। साइड में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। मैंने जो पहली स्टोरी की थी वो इसी पर थी कि वहाँ के जो आई विटनेस थे उन्होंने खुद बताया है ये बात, और ये बात वीडियो में है कि उन्होंने बताया कि कैसे जो लोग इस भीड़ में शामिल हुए उन लोगों ने बताया कि कैसे भीड़ में वो लोग शामिल हुए और उन लोगों ने कैसे की दुकानें तोड़ी। उसके तोड़ने के बाद 2-3 दिन बाद वहाँ का एक लोकल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है देवभूमि रक्षा अभियान। उस ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं दर्शन भारती। दर्शन भारती अपने लोगों के साथ आते हैं उस शहर में और वहाँ पर उनका बहुत ही वहाँ के लोकल ग्रुप द्वारा स्वागत होता है। वो वहाँ के एक होटल में ठहरते हैं और फिर उस होटल में जिस रात वो ठहरते हैं उसी रात वहाँ के मुस्लिम दुकानों पे पोस्टर लगता है कि 14 तारीख से पहले आप लोग यहाँ छोड़कर चले जाएं, नहीं तो अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा। ये बात सीसीटीवी में है, मैंने भी अपनी रिपोर्ट में ये बात मेंशन की है, सीसीटीवी है। पर सीसीटीवी जो जारी हुई है, जो दुकानों से पुलिस ने बाद में ले लिया था, उसको बहुत चालाकी से ऐसे जारी किया गया है कि जो पोस्टर लगा रहा है बस वो दिख रहा है, वो वापस आ रहा है इतना नहीं दिख रहा। 4 सेकंड से 5 सेकंड का सीसीटीवी है, मतलब उसकी शक्ल नहीं दिख रही ताकि वो आइडेंटिफाई ना हो पाए। और ये चलता रहा 13 तारीख तक। वहाँ लोगों के साथ मारपीट भी हुई और 1-2 शॉपकीपर्स ऐसे थे जिन्होंने खोलने की कोशिश की तो उनके साथ मारपीट भी हुई और ये 13 तारीख तक चलता रहा और पुलिस ने किसी को भी अरेस्ट नहीं किया, ना रोकने की कोशिश की। मैं जब गया तो 13 को मैं पहुंचा था पुरेला, तो 13 को जब मैं पहुंचा तो मैंने सबसे पहले 26 तारीख से लेकर 13 तक के वहाँ के लोकल न्यूज़पेपर सबसे पहले मंगवाए और मैंने देखा कि इसके बारे में क्या क्या छपा और वहाँ की लोकल वेबसाइट को देखना शुरू किया। जब मैंने न्यूज़पेपर देखा तो कहीं पर भी विक्टिम की जो फैमिली है उसका वर्जन नहीं था कि उनका क्या कहना है, और ये बहुत ही सरप्राइजिंग था। वहाँ के हिंदू संगठन के लोगों का बयान है, तोड़ फोड़ की चीज़ें हैं, भगाने की बातें हैं, लेकिन कहीं पर भी लव जिहाद की बातें हैं, लेकिन कहीं पर भी विक्टिम की फैमिली का एंगल नहीं है, ना उसका वर्जन है। और तब तक टीवी के रिपोर्टर्स भी दिल्ली से बहुत सारे पहुंच चुके थे और आपने टीवी पे देखा होगा कि अचानक से चलना लगा था कि उत्तराखंड में 70 केसेज हो गए इस बार लव जिहाद के। पिछले साल से 20% ज़्यादा, 40% ज़्यादा, फिर बढ़ते बढ़ते वो 70% ज़्यादा हो गया। तो वहाँ पुरोला पहुंचकर जब मैंने ये सब कुछ पता किया तो फिर मैं डीजी जो वहाँ के उत्तरकाशी के बड़े सीनियर ऑफिसर्स थे, जैसे सर्किल ऑफिसर्स थे, उनसे मिला और उनसे पूछा कि यहाँ पर कितने केसेस हुए हैं लव जिहाद के, क्या ऐसा कोई कानून है जिसके तहत आप लोग केस दर्ज कर रहे हैं, या फिर ये खबर कहाँ से आ रही है कि 50 केस या 60 केस हो गए। तो पुलिस के जो बहुत सीओ से भी ऊपर के बड़े बड़े जो सीनियर्स ऑफिसर्स हैं वो डायरेक्टली ऐसे बोल रहे थे कि ऐसा है इस बार 70 केस हो गया, मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड बता रहा हूँ, किसी को बताइएगा मत। तो मैंने उनसे यही पूछा कि सर अगर 70 केस हुआ है तो FIR बता दीजिए, तो उन्होंने कहा नहीं बता सकते। मैंने कहा कोर्ट दे दीजिए, मैं आपके कोर्ट से लिख दूंगा कि 70 हुआ।
बोला नहीं, ऑफ द रिकॉर्ड है। फिर मैंने कहा कि सर फिर मुझे बता दीजिए किस डिस्ट्रिक्ट में कितना हुआ है, तो बोले नहीं बता सकता। तो मुझे लग गया कि ये हमें फीड कर रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि ऐसा कुछ लिखा जाए। और यकीन मानिए वो चीज़ मीडिया में आई भी, आप सबने उस दौरान टीवी देखी होगी, यही डिबेट था और अखबार में भी यही प्रिंट हुआ। और उसमें आप देखेंगे जो प्रिंट में है, कहीं पे भी कोई कोर्ट नहीं है, किसी एफआईआर का जिक्र नहीं, किसी विक्टिम का जिक्र नहीं है, किस ज़िले में कितना है कुछ जिक्र नहीं है। बस ये है हेडलाइन आ गई कि 70 केसेस हो गए। तो और वहाँ जो मैं फिर से आता हूँ पुरोला पे, जब पुरोला फिर मैं वापस गया तो वहाँ जो टीवी वाले थे वो सिर्फ हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस के लोग जो बहुत एग्रेसिव होकर बोल रहे थे, जो कह रहे थे इनको भगाया जाना चाहिए और लव जिहाद ज़्यादा हो रहा है, हमारे पहाड़ की इज्जत का रोटी का सवाल है, उनको बहुत ही दिखा रहे थे। लेकिन जो विक्टिम है उसकी फैमिली के बारे में, उसकी फैमिली का क्या कहना है, नहीं दिखाया जा रहा था, जो कि बहुत बेसिक होता है। जब भी हम कहीं इस तरह की घटना को रिपोर्ट करने जाते हैं तो ये बहुत एज ए जर्नलिस्ट हमारा बहुत बेसिक काम होता है कि हम एक्यूज से भी और जर्नलिस्ट से कम बात करें और उनका वर्जन जानें। तो मैंने कोशिश की, 14 तारीख को एक वहाँ के लोकल ग्रुप द्वारा एक महापंचायत रखी गई थी, जिसकी वजह से लोगों को वहाँ से जो मैंने जहाँ तक काउंट किया था 41 फैमिलीज़ छोड़कर जा चुकी थी वहाँ पुरोला से। तो जब वो रैली हुई और उसके बाद मैं काफ़ी कोशिश किया, कांटेक्ट नंबर निकाला विक्टिम की फैमिली का, कॉल करता रहा, वो लोग कॉल पे अवेलेबल नहीं थे, बात नहीं कर रहे थे। फिर मैंने घर पता लगाया, मुझे 2 दिन लगे क्योंकि पहाड़ों में थोड़ा सा ढूंढना मुश्किल होता है। 2 दिन बाद मैं जब उनके घर पहुंचा विक्टिम की फैमिली के, तो मैं दरवाजे पर ही था, तो दरवाज़ा बाहर से लॉक था और जो विक्टिम है माइनर गर्ल थी, वो उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए, तो वो अपने मामा मामी के पास ही रहती थी। तो उसके जो मामा थे वो दरवाज़ा बाहर से बंद करके अंदर थे और मैंने अपना परिचय बताया कि मैं मीडिया से हूँ और दिल्ली से आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि मुझे आप लोगों से कोई बात नहीं करनी और आप लोगों ने मेरा जीना मुहाल कर दिया है। तो देन मैं थोड़ा सा उनके दरवाजे से दूर आया और उनके पड़ोसी थे, उनसे थोड़ा सा बातचीत करने लगा और मेरी और उनकी पड़ोसी की बातचीत सुनकर उनको थोड़ा सा कंफर्ट फील हुआ, तो वो उन्होंने दरवाज़ा खुलवाया अपनी वाइफ को बुलवाकर और वो बाहर आए। तब मैंने उनसे बात की कि क्या हुआ, कैसे हुआ, तो उन्होंने फिर पूरी बात बतानी शुरू की और उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मुझे बताई। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने सुना कि उनकी भांजी को किडनैप कर ले जा रहे थे लोग, तो उनको जब खबर आई तो वो अपने दोस्त के साथ गए वहाँ पर जहाँ पे घटना हुई थी। तो उन्होंने पुलिस कंप्लेन दर्ज कराने के बजाय जो एक्यूज थे उनके दुकान पर गए वो, और उन्होंने कहा कि आप लोग माफ़ी मांग लो और हम लोग इस मामले को ख़त्म करते हैं। क्योंकि वो गवर्नमेंट टीचर हैं, तो वो उन्होंने कहा कि मैं कानूनी लफड़े में नहीं पढ़ना चाहता था, मैं चाहता था ठीक है अगर ये कर रहे थे पुलिस अपना काम करेगी। लेकिन हुआ ये कि जो एक्यूज थे उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है और हम माफ़ी नहीं मांगेंगे अगर हमने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि पुलिस इन्होंने कहा कि हमें मजबूरी में पुलिस केस दर्ज करवाना पड़ा। पुलिस केस दर्ज हुआ। जब वो पुलिस कंप्लेंट लिखवाने पुलिस स्टेशन में गए तो वहाँ का एक लोकल जर्नलिस्ट था अनिल आसवाल। उन्होंने बताया कि जब वहाँ पहुँचे तो उस लोकल जर्नलिस्ट ने एक कंप्लेन उनको पकड़ाई जिसमें जितेंद्र सैनी का नाम नहीं था, सिर्फ उबैद खान का नाम था। और उसमें ये लिखा गया था कि ये लोग बहुत दिन से, ये उबैद खान इस लड़की के साथ बात कर रहा था अंकित नाम से, और इसकी कोशिश थी इस लड़की को किडनैप करे और इसको ले जाकर बेच दे और ताकि वह देह व्यापार के धंधे में चली जाए। इस तरह से वो लिखा गया था पूरा। फिर जब वो कंप्लेन इनके सामने आई लड़की के मामा के पास, तो उन्होंने देखा तो उन्होंने इनकार कर दिया कि मैं इस पे साइन नहीं करूँगा, ये तो बनावटी कहानी है। और ये बात लड़की के मामा ने कही थी और साथ में वहाँ के खजान सिंह SHO हैं पुरोला के, उन्होंने भी ये बात कंफर्म की कि हाँ ऐसा हुआ था। फिर जब उन्होंने मना कर दिया कि इस पुलिस कंप्लेन पे मैं साइन नहीं करूँगा, तो वो कंप्लेन रिजेक्ट हुई। फिर दोबारा एक कंप्लेन लिखी गई जिसमें पॉक्सो का एक्ट लगा और अपहरण की कोशिश का मामला दर्ज हुआ। लेकिन वो जर्नलिस्ट जो वहाँ मौजूद था, उस जर्नलिस्ट ने क्या किया, उसी शाम वो गया और अपने पोर्टल पे उसने एक खबर अपलोड की कि पुरोला में लव जिहाद, और पूरा एक एंगल दिया और उसको वहाँ के लोकल व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड किया। और जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे कि धर्म संसद के बाद से ही उत्तराखंड में किस तरह से इस तरह के ग्रुप काम कर रहे हैं, और इवन जो मुख्यमंत्री हैं वो खुद इस तरह की बातें बोलते हैं कि यहाँ पे
लव जिहाद और लैंड जिहाद नहीं चलेगा। उसके बाद वो वहाँ के लोकल जो ग्रुप्स थे सब ने पिक किया और उसके बाद ये पूरा मसला बड़ा होते होते बहुत बड़ा बन गया। तो मैं जब उस जर्नलिस्ट से मिला और मैंने उससे पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया जब आपको पता था कि इसमें लव जिहाद का एंगल नहीं है, तो उसने कहा था, आप नहीं समझेंगे। तो थैंक यू अनमोल। मुझे लगता है कि ये तीनों जो हमारे सामने जो बयान हुए इमाद का फिल्म के माध्यम से और बबलू का और अनमोल का, ये these are also very brave testimonies of very disturbing realities of what is happening, how our politics is using religion and ethnicity to divide and to create very deep divides. नाज़ी जर्मनी को मैंने बहुत नज़दीकी से देखा और कई बार एक बात कही जाती है वहाँ के बारे में। वो कहते हैं कि द होलोकॉस्ट डिड नॉट बिगिन इन द गैस चेम्बर्स, द होलोकॉस्ट बिगैन विद हेट स्पीच, एंड वेयर हेट स्पीच कैन लीड अस, उसके पॉलिटिक्स क्या हैं। ये सिर्फ ये 60 रैलीज महाराष्ट्र में हुए या ये पूरा एक बिल्कुल मनगढ़ंत कहानी जो उत्तराखंड का आपने बताया, और जो कुकी मैती कॉन्फ्लिक्ट का स्वरूप को एक रिलीजियस स्वरूप देकर चर्चेस को अटैक किए जा रहे हैं वगैरह, इसके पीछे एक और राजनीति है। और मैं अमिताभ पांडे से अनुरोध करना चाहता हूँ, if you could, can you talk about what, you know, we've got these 3 examples. In fact, we also have Chandrauday Singh's excellent report on the Ram Navami. So, looking at these realities, I'd like our 3 commentators, the senior commentators, to take us to what are the larger implications of this. Amitabh, if you might like to start. For the last few years, hate, or communal hate more precisely, has been the most dominant dimension of the current regime's statecraft. It has seeped into its structures, its policies, its laws, its processes, its institutions, and its personnel in ways which are completely different from the episodic manifestations of hate earlier. That it is now firmly embedded in the grammar of governance and accepted as a legitimate dimension of public policy is no longer shocking. We know that this is a part of a deliberate design. We also know that most hate-inspired violence is almost everywhere and every time now completely one-sided, premeditated, an assault by an organized group of stormtroopers, if not the police and official agencies themselves, encouraged and often sponsored by one or the other wings of the Sangh Parivar. It is not a two-sided clash. It is not spontaneous mob violence provoked by one or the other party. Each episode of violence is deliberate, each is carefully planned, each has a specific political purpose, each follows an almost identical script, and each pushes the envelope of hate a little further to establish a new normal. But the differences between these diabolically curated episodes, which follow a strategic plan, and the eruptions of communal violence which have dotted much of our past history, go well beyond the complicity of the state and the use of hate as a political strategy for winning elections. The Hindu-Muslim divide today shares little with its earlier history. The earlier divide was predominantly a cultural one, based on a legacy of social and cultural prejudice on both sides.
The Hindu of the last century did not define itself against the other, nor was its identity related to the nation or the nation state. It was a default civilizational identity, almost sui generis, and secure in the celebration of its own plurality and diversity. It did not need otherization. In many parts of India, especially in the north, there was a cultural distrust which could on occasions lead to hostilities where vested interests on both sides played a role. But there was simultaneously a tradition of living together, a shared language, shared traditions of music and dance and other arts, shared in interdependent craft traditions, a blending of cuisines. All this enabled the two communities to live together in relative harmony and overcome occasional bouts of friction. The Hindu of today is a creature of Hindutva and not that eclectic, undefinable, networked web of diversity that loosely constitutes Hinduism. It is the religion of the nation state, claiming to be cultural nationalism. It defines its identity only through otherization, and the Muslim is the most convenient other, though wherever the Muslim is not a significant presence, it will find some other group or community that is seen as resisting the social, political, and cultural domination of Hindutva nationalism. Muslims, Christians, Dalits, tribals, JNU liberals, or a westernized Nehruvian Anglophone, all of them can serve as the other and be made into objects of hate. Without a hate object, the Hindutva identity loses its raison d'etre. This new identity needs to be seen primarily as fulfilling an individual psychological need, particularly for that culturally subliterate Hindu who wants to create its own distinctive cultural universe. Hindu religious festivals, which for most Hindus until 50 years ago were largely family-based celebrations, now serve as an opportunity for aggressive, vulgar displays of religiosity, playing of loud disco pop bhajans with suggestive and communally provocative lyrics, men dancing and marching with orange and red bandanas, Ram Nami scarves alongside jeans and dark glasses, taking out processions through congested alleys, especially in areas with Muslim places where Muslim places of worship exist, using religious slogans like war cries and fishing for belligerent and pugnacious confrontation with the other, Muslim or Christian or Dalit or tribal, where they know they will have the full support of the authorities in being able to bully the other or make them cower or teach them a lesson for alleged historical wrongs. This is a completely new identity kit, which may make use of earlier communal divisions, but represents a radically different sociological phenomenon. It is culturally bereft and debased. It has no moorings. It has no moorings in spirituality or religion. It is patriarchal, it is ugly, and it has nothing to do with being a Hindu. At the national level too, the attempt is to construct a new identity which needs to define itself against the other. It needs the existence of Pakistan as an adversary to believe in itself. It revolved around a militarized, monolithic nation state viewed as a religio-cultural, ostensibly civilizational construct and not as a civic constitutional one. It has elements of race and caste superiority embedded in it. It needs the state to be belligerent, muscular, masculine, and autocratic. It needs to quell dissent and flatten heterogeneity. It needs to view plurality and diversity as its biggest threats. It needs an iconography steeped in violence. For example, the angry Hanuman. It needs hate as an inspiration. It demands centralization of power and a political leader who symbolizes in its persona this religion of the nation. It respects vainglorious men and women and has contempt for persons who are soft and feminine. It needs to construct a laundered past it can glorify. This is the new India. It is not surprising that the current establishment rarely talks of the republic and the citizen, quite apart from giving a communal twist to the concept of citizenship itself.
It views a public reading of the preamble of the Constitution as an act of defiance, as was evident in the Shaheen Bagh protests. And should one talk of fundamental rights, it will immediately begin talking of fundamental duties as being of equal, if not greater importance. It is in this morally ambivalent view of a democratic constitutional republic being at odds with the concept of the nation that the tension within the state apparatus and the administrative machinery lies. More than just political control over the administrative machinery and ensuring their compliance to serve communal ends, it is the primacy of national security, national prestige, and pride, the growth of the nation as an international superpower, as a $5 trillion economy, as a military power hobnobbing with global military giants, that large sections of the administration and the police see themselves as working for. Muslims and other minority communities are viewed as having their primary allegiance to a pan-Islamic or pan-Christian world, and therefore within their worldview, they constitute a threat, and brutal coercive action to keep them in control is seen both legitimate and desirable. Women wrestlers who campaign against sexual harassment of the authorities are seen as lowering the prestige of the nation. All JNU or Jamia students are anti-national because they question this construct of the nation. One can go on and cite examples, but the fact is the administrative machinery, with rare exceptions, is complicit with the political bosses because it shares very similar ideological concerns now. Compounding this is the fact that communal and caste prejudice can now be expressed openly, and not only carries no shame, but is often a badge of honor. Merely reminding civil servants of their constitutional obligations serves little point, because defending national concerns seem to take precedence over everything else. How do we confront this phenomenon? Even if it would be premature to give in to despair, it is necessary that we critique our assumptions, our conceptual categories, and our political practices, interrogate ourselves, and thereby see how we can construct a radically different discourse. Thank you, Amitabha. That was a very thoughtful, very erudite reflection on where hate speech is taking us and how it fits into a larger ideological frame which is threatening our nation. I move now to Apurvanand. Apurvanand has many facets to his public persona, but more and more he is a voice of very resolute dissent and conscience against the process of radicalization through hate. मैं अनुरोध करूँगा अपूर्व के आज की बातचीत आपने जो देखा सुना अभी तक, and we'll conclude this part of the discussion with Neera Chandok, who is one of our most senior political scientists. So just your observations, and then we'll have a conversation with the audience after that. तो जो हमने फिल्म देखी और अनमोल ने वर्णन किया उत्तराखंड की घटना का, उत्तराखंड में जब उस महापंचायत का ऐलान हुआ जो होने वाली थी, तो उस दिन हम लोगों ने सोचना शुरू किया कि कुछ किया जाना चाहिए एक रोज़ पहले, और अपने वकील दोस्तों से हमने बात करना शुरू की, और फिर तय पाया गया कि सर्वोच्च न्यायालय जाना चाहिए। और वह जो एक दिन या 1.5 दिन, पूरा एक दिन भी नहीं था शायद, 1.5 दिन मैं गलत कह रहा हूँ, एक दिन का वक्त था जिसमें पिटीशन तैयार करनी थी, किसकी तरफ से पिटीशन फाइल की जाएगी, और फिर इस चीज़ का कयास लगाना था, अंदाज़ लगाना था कि बेंच कौन सी होगी जिसके पास ये जाएगा, और फिर बेंच का रिस्पांस क्या होगा। और जैसी उम्मीद थी कि बेंच ने ये कहा कि भाई ये राज्य का मामला है और राज्य
में कानून व्यवस्था का मामला है और आप यहाँ क्यों आए हैं, आप हाई कोर्ट जाइए। और जो अधिकतम हासिल किया जा सकता था वो ये कि हमारे वकीलों ने कहा कि आप कम से कम ये कहिए कि हाई कोर्ट इसको सुने। और इतनी मेहरबानी तब सर्वोच्च न्यायालय की उस पीठ ने की कि उन्होंने ये कहा कि हाँ, उच्च न्यायालय इसको सुने। यह हमारा हासिल था उस दिन का। उसके पहले एक बड़ी मीडिया कैंपेन, दूसरी तरफ से तमाम लोगों को कहना, और फिर धड़कते दिल से हाई कोर्ट की तरफ जाना दोपहर में। और वो चूंकि वर्चुअल हियरिंग हो सकती है तो वह की गई। लेकिन अगर इथनोग्राफी की जाए कोर्ट्स की, तब यह अंदाज होगा कि जिसे हम हेट स्पीच कहते हैं, जिसके लिए हिंदी में कोई ठीक उसी तरह का एक शब्द नहीं है। आप घृणा भरा वक्तव्य कह सकते हैं, कुछ लोग नफरती बयान कहते हैं, जो मुझे बहुत हल्का लगता है। लेकिन उसको परिभाषित कैसे किया जाए, और न्यायालयों को ये समझ में नहीं आता है कि आखिर इसमें अपराध क्या हो रहा है। अगर मैं ये कह रहा हूँ, जैसा आपने इसमें देखा, कि अगर कोई हिंदुओं के खिलाफ हिंसा करे तो उसको सबक सिखाया जा सकता है, अगर कोई हमारी लड़कियों को उठाए तो उसका गला काट लिया जा सकता है। भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाना है। अदालतें ये समझ नहीं पाती हैं कि इसे हेट स्पीच क्यों कहा जाए, हेट स्पीच क्या है। और इसलिए पिछले 2-3 सालों से एक अदालती बहस चल रही है कि आप हेट स्पीच को डिफाइन कैसे करेंगे। और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हेट स्पीच दरअसल स्ट्रक्चरल है, यानी क्योंकि अदालत ये जानने की कोशिश करती है हुआ क्या, उसने यह भाषण दिया तो हुआ क्या, उसे कोई मरा तो नहीं, उससे कुछ हुआ तो नहीं। अगर उसके 1 हफ्ता बाद कुछ हो रहा है तो आप उसको इससे कैसे जोड़ेंगे, यह अदालत का सवाल है कि आप कैसे जोड़ेंगे। और मैं देख रहा था कि हमारी वकील यह कहने की कोशिश कर रहे थे, यह कहा जा रहा था कि अदालत कह रही थी कि देखिए आप हमसे डायरेक्टिव मांग रहे हैं, हम कोई डायरेक्टिव नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि आप जानते ही हैं कि ऐसे मामलों में पहले मामले को थोड़ा ठंडा होना पड़ता है, तो ठंडा होने दीजिए, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लोग लौट आएंगे। बार बार राज्य ये कह रहा था, राज्य के वकील ये कह रहे थे कि यहाँ बढ़ा चढ़ाकर मामले को पेश किया जा रहा है, राज्य के खिलाफ राज्य की तस्वीर खराब की जा रही है, और चीज़ें उतनी बुरी नहीं हैं, और थोड़ी उत्तेजना हो गई है, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। और हमारी वकील ये कह रही थी कि आप इसको ये देखिए कि ये स्ट्रक्चरल है, ये जो हेट है ये स्ट्रक्चरल है, ये वायलेंस स्ट्रक्चरल है। लेकिन अदालत को ये स्ट्रक्चरल वायलेंस या तो समझ में नहीं आ रहा था, या अदालत इसको समझना नहीं चाहती थी। मैं दूसरी बात कहना चाहूँगा कि अदालत इसको समझना नहीं चाहती है। दिलचस्प ये होता है, और यह बात हम लोग आपस में कर सकते हैं, कि जब अदालत में बेंच होती है और उसमें अगर कोई एक मुसलमान जज हुआ, तो मुसलमान जज पहले ही झेंपा हुआ महसूस करता है, और वो एक झेंपी हुई हंसी हंसता रहता है कि देखिए अब कितना एम्बैरस किया जा रहा है बेंच को ऐसे मामलों की बात करके, और बेंच किसी तरह उससे निकलना चाहती है कि किसी तरह उससे निकल जाया जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने यह डायरेक्टिव दिया कि आप सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेंगे, आप किसी शिकायत का इंतज़ार नहीं करेंगे, आप FIR करेंगे। और उसके बाद आपने ये देखा होगा कि जस्टिस थॉमस जो रिटायर हुए, और ये सारी बातें हम लोगों को करनी चाहिए कि जस्टिस थॉमस के आखिरी दिनों की हियरिंग किस प्रकार की हुई, जिसमें जस्टिस थॉमस ने जैसे इस मामले को छोड़ ही दिया, और उन्होंने एक बार कहा कि आप बार बार, बेंच ने कहा कि आप लोग बार बार ये मामला हमारे पास लाकर हमें बहुत एम्बैरस करते हैं। तो इसको कहा गया, जैसे यहाँ पर किसी ने कहा फिल्म में, कि अदालत ने एक बहुत बोल्ड
स्टेप लिया, बहुत ही एक बोल्ड डायरेक्टिव दिया। लेकिन अदालत जब ये कहे कि आप बार बार क्यों आते हैं हमारे पास, हमको आप शर्मिंदा करना चाहते हैं, हमको एम्बैरस करना चाहते हैं, और हमारे वकील ने कहा कि आप एक डायरेक्टिव दे सकते हैं, आखिर ये आपका हुक्म है, आप बुला सकते हैं, डीजीपी को बुला सकते हैं, आप चीफ सेक्रेटरी को बुला सकते हैं, आप उनको हाजिर कर सकते हैं और आप उनकी तंबीह कर सकते हैं, लेकिन अदालत उतनी दूर जाने को तैयार नहीं है। जिसका मतलब ये है कि ये जो हेट स्पीच है, इस हेट स्पीच को हिंदुस्तान में कोई भी गंभीरता से लेने को तैयार नहीं, क्योंकि उसे इसका अंदाज नहीं है, या वह यह जानता है लेकिन इसको कबूल नहीं करना चाहता कि यह हेट स्पीच दरअसल मुसलमानों के साथ क्या कर रही है। और ये हेट स्पीच मुसलमानों के साथ क्या कर रही है, यह अब उत्तराखंड में जाकर देखा जा सकता है। अगर हम अनमोल अभी जाएंगे, मैं उत्तराखंड से मेरे एक दोस्त आए, मैं नाम नहीं लूँगा, जो हमारी बिरादरी के हैं, जो हर जगह उठते बैठते हैं, लेकिन उनसे यह कहा गया कि थोड़े दिन के लिए आप चले जाइए, जब मामला ठंडा हो जाएगा तब आ जाइएगा, और वो थोड़े दिन के लिए चले आए। तो पूरे भारतवर्ष में अगर स्थिति देखी जाए, मेरी यूनिवर्सिटी में मेरे सहकर्मी ये बतलाते हैं कि उनके क्लास में अगर कोई डिस्कशन होता है तो उसमें 5-6 लोग बिल्कुल खामोश रहते हैं। वे 5-6 मुसलमान हैं, 60 के क्लास में या 55 के क्लास में, वो खामोश रहते हैं, वे चर्चा में हिस्सा नहीं लेते। और यह चीज़ है जो हासिल कर ली गई है अब भारतवर्ष में, और इसको यह कहा जाता है कि भारतवर्ष में दरअसल कुछ खास नहीं हो रहा है। ये करोड़ों का मुल्क है, इस करोड़ों के मुल्क में अगर 2-4 लोग कहीं मारे जाते हैं या कहीं कुछ होता है, अब अभी कांवड़िए निकल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, अभी आज की खबर है अखबारों में, और आप सब लोगों ने, कुछ लोगों ने उसको ज़रूर पढ़ा होगा कि उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों के में यह ऐलान किया गया कि यहाँ अब गोश्त की दुकानें नहीं खुलेंगी। गोश्त की दुकानें नहीं खुलेंगी, मसला सिर्फ ये नहीं है, बल्कि उनके गोश्त की दुकानों को काले कपड़े से और ढक दिया गया। इतना ही नहीं किया गया, 114 ऐसे मुसलमानों को पुलिस स्टेशन बुलाया गया और उनसे कहा गया कि उनको बुलाया गया है पीस मीटिंग के लिए, और बुलाकर उन्हें कस्टडी में डाला गया और जेल भेज दिया गया। क्यों? वे उन्होंने क्या किया था? गोश्त की दुकानें चलाते थे या कुछ और करते थे, लेकिन पुलिस ने कहा उनको अंदेशा है कि वो आगे जाकर कुछ कर सकते हैं, और इसलिए उनको प्रिवेंटिव कस्टडी में डाल दिया गया। वो जेल में है सिर्फ इसलिए कि वे मुसलमान हैं। तो मुझे पता नहीं कि हम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। हम अगर अभी भी ये इंतज़ार कर रहे हैं कि 2000, 4000, 5000 मुसलमानों के कत्ल की खबर जब तक नहीं आती है तब तक हम समझेंगे कि कुछ भारतवर्ष में नहीं हो रहा है और सामान्य चल रहा है, तो भारतवर्ष एक बहुत असामान्य अवस्था में है। और एक तरह का मनोवैज्ञानिक जनसंहार भारत में चल रहा है। दूसरी चीज़ जो चल रही है वो यह कि हिंदुओं को इसका यकीन दिलाया जा रहा है कि उनको अब इसका पूरा अधिकार है कि वे किसी का भी अपमान कर सकते हैं, किसी को बेइज्जत कर सकते हैं, किसी के भी साथ जैसे चाहे पेश आ सकते हैं, और ये एक नया सेंस ऑफ एम्पावरमेंट है जो हिंदुओं को दिया जा रहा है। अलावा इसके कि यह भी उनको बतलाया जा रहा है कि अब राज्य पूरी तरह से आपके पीछे है। जैसे उत्तर प्रदेश में हेलीकॉप्टर से अगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या बाकी तमाम लोग फूल बरसा रहे हैं कांवड़ियों पर, तो इससे एक एहसास है कि अब यह राज्य का धर्म है। हम शेंगोल की बात अभी कर ही नहीं रहे हैं, जो शेंगोल संसद में स्थापित किया गया, जिसका एक बड़ा प्रतीकात्मक अर्थ है कि जब वह संसद में स्पीकर की कुर्सी के बगल में शेंगोल स्थापित किया गया, और जिस पर हम लोगों ने, जिसको बहुत गंभीरता से नहीं लिया, मैं कहूँगा वक्ती चर्चा जो भी हुई, वक्ती उत्तेजना जो भी हुई, लेकिन यह एक प्रतीकात्मक परिवर्तन है।
तो ये देखा जा रहा है, जिसको हम लोग ऐसे समझते हैं कि हिंदुस्तान में 3 तरीकों से काम किया जा रहा है। एक, कानूनी तरीके से मुसलमानों को पूरी तरह से किनारे किया जा रहा है, और वो कानून ट्रिपल तलाक जैसे कानून हैं, वे तथाकथित लव जिहाद वाले कानून हैं, वे एंटी काउ स्लॉटर कानून हैं, और दूसरे तरह के कानून हैं। तो ये एक कानून का रास्ता है। दूसरा रास्ता है जो सड़क की हिंसा का है, जिसमें देवभूमि रक्षा समिति, बजरंग दल और बाकी तमाम दल हैं, जिनको ये अधिकार दिया गया है कि वे जहां चाहें मुसलमानों के खिलाफ हिंसा कर सकते हैं। तीसरा तरीका है मीडिया के द्वारा मुसलमानों के खिलाफ रोजाना प्रचार करना, अहरनिश उनके खिलाफ प्रचार करना, और इस तरह की बेतुकी बातें करके भी उसमें या तो कुछ लोग मजा लेते हैं या फिर कहते हैं इसमें कोई खास बात नहीं है। जैसे एक चैनल ने यह कहा कि दरअसल ये जो पूरा टमाटर का संकट पैदा हुआ है, ये मुसलमानों की साजिश है। अब इसको सुनकर आप बिल्कुल हैरान रह जाएंगे, लेकिन यह एक संभावित थ्योरी के रूप में पेश की जाती है कि यह हो सकता है। तो ये 3 तरीके हैं जिसमें आप कानून बनाएं, फिर आप सड़क पर हिंसा करें। तीसरा तरीका है जिसमें आप मुसलमानों के खिलाफ रोजाना प्रचार करते रहें। कल हमारी एक चर्चा हो रही थी जिसमें सिद्धार्थ वरदराजन ने कहा कि एक समय था जर्मनी में जब कहा जाता था ज्यूज इज न्यूज, उस तरह अब हिंदुस्तान में हमेशा मुसलमान को एक खबर के रूप में सामने रखने की कोशिश की जाती है, जिसके चलते मुसलमान खुद शर्मिंदा महसूस करने लगे, खुद पीछे जाने की कोशिश करने लगे, खुद सारे पब्लिक स्पेसेस से खुद को विड्रॉ कर ले और सिर्फ जीने तक अपने आप को सीमित करना चाहे, और उससे आगे की मांग अगर वो करे तो उसको कहा जाए कि यह एक अतिवादी मांग है। लेकिन मेरी समझ से यह सब कुछ बदला जा सकता है, और वो सिर्फ एक तरह, और ये मैं आखिरी बात अभी के लिए कह के अपनी बात ख़त्म करूँगा, वो ये कि अब शायद हमें बहुत ज़्यादा की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। यह कि हिंदुओं के दिल में मुसलमानों के लिए बहुत सारे पूर्वग्रह हैं, जिन पूर्वग्रहों को उन्हें दूर करना चाहिए। जैसे कि मुसलमान 4 शादी करते हैं तो हम आंकड़े पेश करेंगे और कहेंगे कि नहीं पॉलीगैमी उनमें उतनी नहीं है जितनी हिंदुओं में है। फिर कहेंगे वो बहुत बच्चे पैदा करते हैं, तो फिर हम आंकड़े पेश करेंगे और कहेंगे नहीं फर्टिलिटी रेट देखिए अब यहाँ हो गई है, यहाँ हो गई है। इस तरह हम हिंदुओं के भीतर के पूर्वग्रह को ख़त्म करने की कोशिश, ये एक तरीका है। दरअसल मेरी समझ ये है कि हम इसमें यकीन करना चाहते हैं, इसलिए आप कितना भी आंकड़ा पेश करें हम उन आंकड़ों को नहीं मानेंगे। आप कितना भी कहें कि नहीं मुसलमान गंदा नहीं रहता है, हम उसको नहीं मानेंगे। नहीं मुसलमान उतना गाय का गोश्त भी नहीं खाता है, हम उसको भी नहीं मानेंगे। तो इसका मतलब मैं आपके दिल को अपनी तरफ से साफ नहीं कर सकता, लेकिन मेरा इस मुल्क पर हक है। तो जो न्यूनतम चीज़ या अधिकतम चीज़, जो मिनिमम है वो मैक्सिमम है, वो ये कि अब इस मुल्क में कानून का राज स्थापित होना चाहिए। यानी आपके मन में जो पूर्वग्रह हैं वो पूर्वग्रह मेरे खिलाफ हिंसा में तब्दील ना हो, इसकी गारंटी की जानी चाहिए। और ये किया जा सकता है, ये कम से कम अभी कर्नाटक ने पिछले 2 महीने में दिखलाया है। कर्नाटक के 2 महीना पहले के कर्नाटक की खबरों को देखिए और अभी 2 महीने के कर्नाटक को देखिए, जिसमें कर्नाटक सरकार ने बहुत सख्ती से सारे हिंदुत्ववादी संगठनों को कहा है कि एक भी मसला ऐसा आया आपके साथ बहुत ही सख्ती से पेश आया जाएगा। और कर्नाटक में 2 महीना पहले जो रोजाना घृणा अभियान दिखलाई पड़ रहा था, रोजाना हिंसा की घटना दिखलाई पड़ रही थी, अभी 2 महीने से बिल्कुल खामोशी है। हम नहीं कह सकते आगे रहेगी कि नहीं, हम नहीं कह सकते कि राज्य का तंत्र रहेगा नहीं, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने सारे पुलिस अधिकारियों को और सारे जिला अधिकारियों को और सारे प्रशासनिक अधिकारियों को बैठा कर कहा कि आपने यह होने दिया है और आज से आप इसे नहीं होने देंगे। तो भारत में जो तब्दीली हुई है पिछले 8 वर्ष में, वो तब्दीली ये हुई है, और इस बात को भी कहा जाना चाहिए कि हम हमेशा राजनीतिक शक्तियों को कहते हैं कि पॉलिटिकल पावर रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन हमें यह कहना चाहिए कि जिम्मेदार
वो प्रशासक है, वह पुलिस अधिकारी, वह जिलाधिकारी जो वहाँ पर है, और वह यह कह के नहीं निकल सकता कि ऊपर से आदेश आए हैं। और अब यह कहा जा सकता है कि भारतवर्ष में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी जिनको है, उनमें से 90% से ज़्यादा लोग इस्लामोफोब हैं। और यह एक बहुत ख़तरनाक चीज़ हुई है। और यह भी कहा जा सकता है कि भारतवर्ष में पहले जो अल्पसंख्यकों को विश्वास था सेना पर, वह विश्वास भी अब काफ़ी कुछ हिल गया है। तो हम एक ऐसी स्थिति में हैं। आगे क्या होगा, कैसे होगा, ये कहना मुश्किल है, लेकिन जैसे कर्नाटक में किसी भी तरह सत्ता परिवर्तन किया गया और कानून के राज को स्थापित करने की कोशिश की गई, वह न्यूनतम, कम से कम जो अभी का मैं कहता हूँ मैक्सिमम है, उसे अचीव करने की, उसे हासिल करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। Thank you, Apurvanand. That was a very thoughtful and sobering कि जो एक मिनिमम गारंटी किसी भी सिटीज़न की होनी चाहिए कि उसकी सुरक्षा सरकार करे, वो अब मैक्सिमम एक्सपेक्टेशन हो गया है। कम से कम ये तो करिए, और हम अपेक्षा कर ही नहीं सकते हैं, इस हालत में पहुँचे हैं। और जो आपने ये भी कहा कि न्यायालय कह रहे हैं कि अरे हेट स्पीच हुआ तो कुछ हुआ नहीं ना उसके बाद, तो फिर हम क्यों हस्तक्षेप करें। ये दिस इज़ ऑल्सो एक्सट्रीमली वरिंग एंड डेंजरस एंड एब्सोल्युटली आप सही कह रहे हैं। मैं पिछले 3-4 महीनों में मैं देश के बहुत कोनों में गया हूँ और बिहाइंड क्लोज डोर्स मुस्लिम आइडेंटिटी के साथियों के साथ मैं बैठ के उनके नज़र में देश में क्या हो रहा है उसकी हालात समझने की कोशिश कर रहा था। और एक शब्द जो बार बार सबसे ज़्यादा मैंने सुना इन लगभग 50 बातचीतों में, वो है डर। कि डर, खौफ अब हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा हो गया है। और उसका I mean, the source of this fear is very substantially the hate speeches and incidents of lynching. And if the courts cannot see this, if our political establishment cannot see this, we're going deeper and deeper into a place of great darkness as a republic, which is why we wanted to start this conversation. I know that this was a large panel. We needed to, but this first time I felt let us place the stories on the ground and let us reflect on it together. तो उस संदर्भ में हमारी जो एक और कमेंटेटर हैं नीरा चंदोक, उनकी तबीयत कुछ ख़राब है लेकिन वो वापस आ रही हैं। इस सब के बीच में लगभग 10 मिनट ऑडियंस की तरफ से अगर कोई भी कुछ बोलना चाहें, मीना वी नीड योर हेल्प। ऑडियंस में कोई कुछ कमेंट, सवाल, ये गंभीर चर्चा हुई, इसमें आप कुछ जोड़ना चाहते हैं और फिर क्लोजिंग कमेंट्स के साथ हम लोग समाप्त करेंगे। सर, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, तो मैंने कुछ सालों में जो है एक ऑब्जर्वेशन किया है स्मॉल सा। तो बहुत सारे स्टूडेंट से, प्रोफेसर से बातचीत भी होती है और उनको देखते भी हैं। स्टूडेंट कैरियर ओरिएंटेड भी जो उनका डिस्कशन रहता है, तो उसमें मैंने ये देखा है कि जो एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का रहता है नैरेटिव, मतलब पॉलिटिकल उनका क्या कहते हैं, मतलब पॉलिटिकल एक आइडियोलॉजी तो रहती है हर किसी न किसी की। उसके अलावा एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज़म भी बहुत ज़्यादा जो है दिमाग में असर कर रहा है कि स्टूडेंट जो एक फ्रेश आता है स्कूल से पढ़ करके, उसको बहुत सारी आइडियोलॉजी के बारे में नहीं पता होता है। लेकिन मैं ये अंतर देख रहा हूँ कि जो 4-5 साल पहले स्टूडेंट आता था, उसको कई सारे कीवर्ड जो हैं आज चल रहे हैं राइट विंग की आइडियोलॉजी से रिलेटेड, उनको उसका पता ही नहीं होता था। कि उसको पूछते थे स्टूडेंट को कि अखंड भारत क्या है, तो कहता था मुझे नहीं पता। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ तो उनको लगभग बहुत सारी चीज़ें पता है मीडिया के थ्रू या अलग अलग डिस्कोर्स से, और वो इसलिए भी कहीं ना कहीं एक आइडियोलॉजी से या संगठन से जुड़ना चाहते हैं ताकि उनको एक सेफ्टी सिक्योरिटी फील हो और उनको एक यूनिटी फील हो कि कल को हमको भी एक आइडेंटिटी मिली है,
कि हम भी एक पावरफुल संगठन के मेंबर हैं। और धीरे धीरे उससे जुड़ने के बाद जैसे उससे जुड़ता है तो उसको उसी में कैरियर नज़र आने लगता है कि यही मेरे को एकेडमिक्स में या अलग अलग फील्ड में आगे बढ़ाने का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बन सकता है। और अभी रिसेंटली जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी आए, तो वहाँ पे किस तरीके से नॉर्मल स्टूडेंट को उतना अलाउ नहीं किया गया प्रोग्राम में, एक पर्टिकुलरली आइडियोलॉजी के लोगों को ही जो है एंट्री पास दे करके फिर वहाँ पे स्लोगन लगवाना प्राइम मिनिस्टर के साथ सामने। और उसमें टीचर्स भी जो है बहुत प्रोवोक कर रहे हैं ओपनली, उनको क्लासरूम में जो है किसी को भी थोड़ा सा उस तरीके से डिस्कोर्स खड़ा करना माइनॉरिटी के या किसी के खिलाफ। और जो है स्टूडेंट भी इस बात में बहुत खुशी महसूस करते हैं कि हमने इस प्रोफेसर के सामने किसी दूसरी कम्युनिटी के बंदे को गाली दे दी। और एक पर्टिकुलर ड्रेसअप जो है वियर करके आना, और प्रोफेसर्स भी उसी तरीके से काम कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर ड्रेसअप रखना, प्लेटफॉर्म्स पे जाके मीडिया में या तमाम जगह पे ओपनली हेटेड फैलाना। और उनसे जब पूछते हैं तो कहते हैं कि हमको अभी अपॉर्चुनिटी मिली है, ये हेट्रेड जो है हमको अर्श से फर्श तक की यात्रा करा सकता है, तो हम क्यों ना नफरत फैलाएं। आप लोगों की अच्छी बातों से तो हम ज़मीन पे ही रह जाएंगे। तो इसको हम किस तरीके से देख सकते हैं। और एक जॉब्स की बहुत दिक्कत है कि हम लोगों को जॉब मिलता नहीं है, तो उसके चक्कर में भी लोग एक आइडियोलॉजी से जुड़ जाते हैं। मेरा सवाल बेसिकली तो वो किनारे वाले दोस्त से है। सवाल, हम 60-65 साल में सेकुलरिज्म अपने बच्चों को, अपने बड़ों को नहीं सिखा पाए, और 10 साल में इतनी घृणा सिखा पाए। क्या हम लोगों के चरित्र में त्रुटि थी, खोखलापन था? जब हम कहते हैं कि पूर्वानंद सर ने कहा कि जो बहुत बड़े तबके तक जो हेट है वो पहुंच चुकी है, और मैं ग्रामीण तबके से आता हूं, तो गांवों के लोग भी अब हिंदू राष्ट्र का सपना देखने लगते हैं। और अगर उनके व्हाट्सएप पे वो स्टेटस देखेंगे तो रोज़ यही अखंड भारत के नक्शे वो लगाते हैं और शिवाजी के जो फोटोज़ वो लगाते हैं। मेरा ये कहना है कि अगर उन तक जैसे ये डॉक्यूमेंट्री बना के हमको दिखाई, अगर इन डॉक्यूमेंट्री जैसी फिल्में, तमस जैसी फिल्में, पिंजर जैसी फिल्में, गर्म हवा जैसी फिल्में, या फिर जो उपन्यास लिखे गए हैं बेहतरीन सांप्रदायिकता पे, अगर वो हम उन तक पहुंचा पाएं, आप बड़े लोग हो, तो बड़ी मेहरबानी होगी। क्योंकि जब तक साहित्य आदमी नहीं पढ़ेगा तब तक इन दर्द को वो झेल नहीं सकता है। हेलो, मेरा नाम श्री कुमार है और मैं सेंटर फॉर वुमेन स्टडीज़ JNU में रिसर्च स्कॉलर हूँ। और आज का जो टॉपिक है वही मेरा रिसर्च का मेन प्रॉब्लम भी वही है, लेकिन मेरा जो लेवल ऑफ इंक्वायरी है वो स्कूल लेवल पे, और वहाँ कहीं ना कहीं मैं जॉन सर के क्वेश्चन से भी एग्री करता हूँ कि जो सरकारी स्कूल है, जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, और मैं वहाँ एथनोग्राफी कर रहा हूँ, और जो हेट एक बड़ा कॉन्सेप्ट है और हेट से वायलेंस वेल स्टैब्लिश्ड है, लेकिन मेरा सवाल उससे थोड़ा सा नीचे है कि प्रेजुडिसेस। हम सरकारी स्कूल में जाते हैं ये उम्मीद से कि स्कूल में जब बच्चे आएंगे तो अलग अलग कम्युनिटी से, अलग अलग जेंडर से आएंगे, और एटलीस्ट वहाँ पे वो साथ में दोस्ती करना सीख पाएंगे, मोहब्बत करना सीख पाएंगे। हमने अपने स्कूलों में यही सीखा था। आज का जो भारत है, और मैं अपने रिसर्च एरिया की बात करता हूँ, मेरा एरिया मेवात पड़ता है, हरियाणा से 45-50 किलोमीटर दूर, और उससे पहले गुड़गांव पड़ता है। तो मैं गुड़गांव और हरियाणा के सरकारी स्कूलों पे जाके एथनोग्राफिक स्टडी कर रहा हूँ। अभी हम स्टिल इन द प्रोसेस, पर जो वक्तव्य है, जो वहाँ पे नैरेटिव है, जो बच्चों के जो कमेंट्स हैं, वो दे आर डिस्टर्बिंग टू ए लेवल कि नींद नहीं आती है। ये समस्या बहुत नीचे तक ट्रिकल डाउन कर गई है, और जो हमें अचीव करना चाहिए था पिछले 50-60 जो 5-6 सदियों के सरकारी स्कूलों में, शायद वहाँ पे हम नेहरूवियन स्टेट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, जिसकी बैकबोन पे आई थिंक आज का जो नया भारत है जिसको लेके हम चिंतित हैं, वो उस पे स्ट्राइव कर रहा है, थ्राइव कर रहा है प्रेजुडिसेस पे। तो और हाँ, एक और पर्सपेक्टिव है जो जेंडर का पर्सपेक्टिव है। सो जो हम हिंदू की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हिंदू मेन, हिंदू मैस्कुलिनिटी, और वो जो मैस्कुलिनिटी स्कूलों में हुआ करती थी, वो मैस्कुलिनिटीज़ किस तरह से बदल रही हैं,
उसमें कितनी डाइवर्सिटी हुआ करती थी, अब है कि नहीं है, वो किस तरह से बदल रही है, ये सवाल है और ये काफ़ी चिंता का विषय है. एंड आई थिंक थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी एंड टॉक. मैं पूर्वानंद सर से जानना चाहता था कि सर आपने कहा कि अब समय आ गया है कि देश में कानून का राज होना चाहिए. सर इस संदर्भ में अगर यूसीसी की संकल्पना को देखा जाए, इसके इम्प्लीमेशन को छोड़ दिया जाए कि कैसे इम्प्लीमेंट होगा, एक अवधारणा के रूप में यूसीसी पे क्या विचार हैं आपके? I have a question specifically directed to Bablu ji. See, you gave a very comprehensive and exhaustive account of the history of Manipur, the ethnic violence there between the Maitis, the Kukis and the Nagas and so on. Now, one thing which has been widely reported both in the national as well as the international media like The Guardian is that about the Maitai Paibis, the Manipuri women. They have a long and glorious history of protesting against Assam Rifles, also supporting Irom Sharmila and a hunger strike, 16-year-long hunger strike and so on. Now there are many reports where, of course, as you said, there are vigilante mobs who are probably backed by the state. And because of saying this, 3 ladies who had gone there to Manipur have FIRs registered against them. But the Manipuri, there are many reports where the Manipuri Paibis have gone with the Maitai vigilante groups and actually encouraged their men to rape Kuki women. This was, it came to me as a very big shock because I had a totally different impression about the Manipuri Paibis and the progressive role which they had played so far. I don't know how much truth there is, but the widespread propaganda or the widespread this thing, both in national and international media, makes me wonder. I would like to have your comments on that. So friends, every single question was very thoughtful. मुझे आप लोग बहुत ध्यान से सुन रहे हैं. It's not a large audience, but it's a very thoughtful audience, and I'm grateful. मेरी बहुत इच्छा है कि मैं एक को रिस्पॉन्ड करूं, लेकिन मैं आज मॉडरेटर के तौर पे हूं, तो I will not speak and respond. We have very fine people here. But to start with, I request Neera Chandok, Dr. Neera Chandok, who's one of the country's most respected political scientists, and has been increasingly expressing her worry and anguish about rising hate and politics of hate. आपने जो इस तरफ से बातें सुनी और अब थोड़ी बहुत इधर से भी सुनी हैं, would you like to give us some comments, and then I'll request each of the panelists to respond with just a couple of minutes each. How did we reach where we are today? हम यहाँ पर कैसे पहुँचे? ये नहीं है कि पहले हमारे यहाँ हिंसा नहीं होती थी, कम्युनलिज्म नहीं होता था, बट इस तरह का कम्युनलिज्म, वो जो सेकेंड क्लिप दिखाया था जहाँ पर वो आदमी अपने, I don't know who he is, some saffron colored man who was openly calling for murder, वो भी डरावना नहीं था. डरावना ये था कि लोग उसको किस concentration के साथ सुन रहे थे. People hanging from the flyover, from the road, listening to him. An open call for murder. हम लोग यहाँ पर कैसे पहुँचे? You know, शेक्सपियर का नाम सुना ही होगा आपने. शेक्सपियर ने बहुत सारी प्लेज लिखी, पर 2 प्लेज लिखी जिसमें उसने सवाल पूछा, और बहुत सारी प्लेज में लिखी, बट आई एम गोइंग टू मेंशन 2, मैकबेथ एंड जूलियस सीजर, कि एक समाज टायरेंट के हाथों में कैसे फंस जाता है. How do people who are otherwise pretty commonsensical fall into the trap of a tyrant who neither has competence nor has the virtues nor of governing us, but whom they love? And there's a very interesting phrase in his Julius Caesar. एक सेंटेंस बहुत कॉमन है, et tu brute, जब ब्रूटस जो सीजर का दोस्त होता है उसको चुरा चौंकता है, तो सीजर कहता है तू भी. ब्रूटस एक्चुअली लव्ड सीजर, उसका दोस्त था, उसका साथी था, पर वो बहुत डरता था क्योंकि सीजर वॉज वेरी पॉपुलर अमंग द पीपल, और सीजर के बहुत पावर था. ही हैड बिल्ट एन एम्पायर, और शुरुआत में
ये ब्रूटस घूम रहा होता है और कहते हैं आई लव हिम बट ही इज डेंजरस फॉर रोम। जिस लीडर को लोग इतना प्यार करते हैं वो डेंजरस है, देयर इज समथिंग रॉन्ग इन हिम, ही इज अ गुड डेमोगॉग, बोलने में अच्छा है, बट व्हाट विल ही डू टू द कंट्री। सो वो मिल जाता है उन लोगों के साथ जो सीजर को मारने की कोशिश करते हैं, और आखिरी वक्त पर जब वो छुरा झोंकता है, सीजर लुक्स एट हिम एंड सेज यू टू ब्रूटे। पर मार्क एंथनी जो सीजर का दूसरा दोस्त होता है, ब्रूटस को हीरोज फ्यूनरल देता है, क्योंकि ब्रूटस ने सही प्रश्न उठाए, व्हाट आर द डेंजर्स ऑफ अ पीपल हु फॉल इनटू द हैंड्स ऑफ अ टायरेंट। अब एक ही इसका थैंक यू, इसका एक ही जवाब हो सकता है कि हिंसा का सहारा लेके एक स्पेक्टिकल माउंट किया गया है। आपने कभी स्पेक्टिकल देखा है? एक तरह का स्पेक्टिकल है जो संजय लीला भंसाली अपनी फिल्मों में दिखाते हैं, विच इज टू मच, और एक तरह का स्पेक्टिकल है विच योर मणिपुरी डायरेक्टर रतन थेयम शोज, मिनिमलिस्ट in his Priyadarshi Ashok, when Ashok is wondering what has he done in the battle of Kalinga. पर ये जो स्पेक्टिकल है, और पॉलिटिक्स है, स्पेक्टिकल बहुत पुरानी थियोरी है, ये नई भी नहीं है, कि जब पॉलिटिक्स एक स्पेक्टिकल बन जाता है, सबसे बड़ा the biggest casualty is democracy, because democracy is not about spectacle. Democracy भागीदारी के बारे में है. We are equal shareholders in this system of government because we have elected a government and we can hold him responsible. पर अब आप देखेंगे दुख की ये बात है कि हिंदुस्तानी समाज चुप हो गया है. Newspapers have surrendered. मैंने इतने बोरिंग आर्टिकल सेंटरपीस कभी नहीं देखे जो आजकल न्यूज़पेपर्स में देख रही हूँ. Many newspapers have surrendered. TV has become unwatchable. Yes. ये कैसे हुआ? And I suspect because spectacle does one thing. It constitutes the people as an audience. हम लोग भागीदार नहीं रहे. We are not shareholders in this democracy. We have become an audience. जब एक स्पेक्टिकल वायलेंस का होता है, बिकॉज वायलेंस हैज अ वे ऑफ कैप्चरिंग यू इन इट्स कॉइल्स, और आप, गांधी ने ठीक कहा था, यू कांट कंट्रोल वायलेंस, वायलेंस कंट्रोल्स यू. आप अपने, यू डू नॉट रिमेन इन कंट्रोल ऑफ योर सेल्फ, एंड यू डू नॉट रिमेन इन कंट्रोल ऑफ योर सेल्फ व्हेन यू सी वायलेंस. आप या तो भागीदार बन जाते हैं या आप ऑडियंस बन जाते हैं. The latest theory propounded by Jacques Rancière is that between the spectacle, a play or a movie, and an audience, एक line होती है जो cross नहीं की जाती. When you're watching a play or a movie, you don't cross that line. हम एक तरह से audience बन गए हैं, और आप जरा सोचिए जो तरह की हम हिंसा देख रहे हैं, which is being called for, which is being supported by the state because state कुछ नहीं कर रहा. Government support ही कर रही होगी अगर इनको कुछ they're not being penalized. हम लोग जब चुप रहते हैं, जब लोग हम ऑडियंस बन जाते हैं, हम इसका वायलेंस का पार्ट बन जाते हैं. It's time to ask what has violence done to us as a people. मैंने बहुत इलेक्शंस देखी हैं. In all these years, I have seen many governments come and go, and I have never seen an Indian people so quiet as I see them today. जब हमारे fellow citizens को humiliate करा जा रहा है, मारा जा रहा है, and have you seen, आप morning news देखिए, वो रेमंड विलियम्स कहते थे, मैं सुबह newspaper नहीं पढ़ता, it ruins my day. And the same thing is happening to me. You look at the newspaper, there's why violence has become an institutionalized way of life. आज भी था, one young woman told a young man, I'm not going to marry you, वो उसको छुरा मार देता है. You know, violence has become the acceptable way of not only doing politics, of also dealing with personal dilemmas, and this happens when your government is quiet in the name of violence.
as an old-fashioned political scientist who does not believe in the independence of society from this government, I can say very specifically that the politics of the state dictates the state of politics in the country. जिस तरह की हमारी गवर्नमेंट होगी, जो गवर्नमेंट amity नहीं आपको preach करेगी, we will not learn to live. You see, government is not about governance. Governance is a very apolitical concept. It's not about development. Development के ऊपर जितनी चर्चा हुई है social sciences में किसी subject के ऊपर नहीं, स्टालिन ने भी development use करी थी रशिया में. You know, in a way, a democratic government is supposed to figure out how people who belong to different religious persuasions can learn to live together. अब हमारी गवर्नमेंट को ये समझ नहीं है या वो प्रैक्टिस नहीं करना चाहती, where openly they are discriminating against the minorities, वो हमारे की internalize हो गए, we have been learned to become an audience, we haven't become participants. And when I think of how 20 years ago political science was dealing with deliberative democracy, dialogical democracy, participative democracy, हम लोग कोशिश कर रहे थे liberal democracy को हम expand करें so that people can be active participants in this democracy. Today ये हाल है कि we are no longer citizens. We are the audience of spectacle of politics, and that politics is based about violence. It is based around violence. Violence has become a normal. It's a cliche. It's become a new normal. It has become a new normal. When you think of what people are doing to other people in our country, we should hang our heads in shame. We do not have any credentials to call ourselves an old civilization. Civilization does not treat its people in this way. Civilization, a state knows how to treat everybody with the respect they deserve because we are citizens, we are not subjects. But violence has transformed us from citizens to subjects, to audiences who are watching, and because we are not doing anything about it except a few, right? We are participants. हम लोग violence का भागीदार बन जाते हैं, हिंसा का भागीदार बन जाते हैं. We are as guilty of practicing violence when we keep quiet as we are of preaching violence. So we have to understand what this has done to our country, what it has done to our society. हम इकट्ठे रह रहे थे ना, badly, indifferently, at least there was no institutionalized hate. You know, I come from Punjab. Whenever I go to Punjab, I'm amazed to see how Hindus, Sikhs and worship and Muslims worship at dargahs. They worship together. Their styles of worshipping are different, but they speak the same language. एक इकट्ठी भाषा बोलना is a form of democracy. We should speak the same language. But ये language जब violence का बन जाता है, we may not participate in violence, but we are certainly responsible for that violence. So these two shorts that were shown to us, they made my blood run cold. I've seen some of them. But to have such hate being preached, you know, not only Indian Hindus should be ashamed that somebody dressed in saffron rags is is preaching such hate, advocating murder. And what are we doing about it? We are quiet. Because politics has turned us from citizens into subjects. And if we are not careful, we will forget what it is to have a democracy. We will get used to the idea of spectacle. वो ancient Romans कहते थे ना, emperors, give them spectacle, how does it matter if they don't have any food? We have become just like that. And we have to be careful how this term, this notion of spectacle was the Prime Minister inaugurating the new parliament. Was that a democratic act? Parliaments are supposed to be representatives of us, no? But here you have one man appropriating legitimacy because people seem to love him. And they love him because we have become apolitical, we have become spectators.
we have been turned from citizens into subjects. That's all I want to talk about. Thank you, Neera. That was extremely profound. I think a very good wrapping up of this discussion. I think हम लोग इस कमरे में इसलिए we are gathered because we don't want to be silent spectators, and we're trying to refine our voices as citizens and not spectators. And I think this little conversation is actually a way of reasserting the fact that this is a democracy, and if we remain silent, we are participant in the hate that is surrounding us and becoming us. Last comments, literally 1 minute each. I'll start from here. Sure. It's sad that Zia Salam is not here, and I had to be the only Muslim representative. So I might take slightly longer than 1 minute and keep you hungry for a little more. I just wanted to talk about the structure that the judges were talking about. In a lot of cases that I have spoken with Justice Lokur and other legal experts, there are orders in which they say that an impact is not necessary for it to term as hate speech. But what is happening is on the ground at the level of police. अगर पुलिस मेरे खिलाफ हेट स्पीच दायर करती है तो मैं मजिस्ट्रेट के पास चला जाता हूँ, और अगर इन बड़े हेट स्पीच ऑफेंडर्स के खिलाफ होती है तो वो उनका बेल ऑर्डर एक्सेप्ट करती है, मेरा बेल ऑर्डर कंटेस्ट करती है. उस लेवल पर ही ये सारा हेट स्पीच का प्रॉब्लम दरअसल क्रिएट हो रहा है. वी नीड लार्जर लीगल रिफॉर्मेशन एज वेल, बट a lot of it is because of state machineries. What Anmol was speaking on what's happening in Uttarakhand, जो टूल किट की बात ही करते हैं, ऐसा लग रहा है कि टूल किट की तरह महाराष्ट्र में उन्होंने कॉपी पेस्ट किया है. उसी तरह से कोई एक केस मंसर में, पुणे में निकल कर आता है 16 मई के अराउंड. उसी तरह यहाँ पर सीएम एक जगह जाते हैं और बोलते हैं लव जिहाद के केसेस हो रहे. यहाँ पे डिप्टी सीएम फडणवीस जाते हैं और बोलते हैं कि लव जिहाद के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं. और एग्जैक्टली सेम तरह के पैटर्न, सेम तरह के स्पीचेस हमें हर तरफ नज़र आ रहे हैं. अब वो जो वायलेंस हो रहा है उससे क्या रिलेशन है, ये हमें कुछ पैटर्न्स साबित कर रहे हैं. ये वायलेंस तो बहुत दूर नहीं हो रहा है. बहुत सारे, औरंगाबाद में एक रैली हुई जिसकी परमिशन उन्हें नहीं थी, सेम स्पीकर राजा सिंह वहाँ पर थे. परमिशन नहीं होने के बाद भी रैली हुई, और रैली ख़त्म होने के बाद उसी रैली के लोग एक विमेंस पब्लिक टॉयलेट के ऊपर चढ़ गए और उसके ऊपर जो औरंगाबाद नाम लिखा था उसे तोड़ने लगे. कोल्हापुर में तो उसी रैली के बाद लोग निकल कर उन्होंने एक बड़ा वायलेंस किया. संगमनेर में वही हुआ. तो उसमें डिस्टेंस भी नहीं है. कोर्ट को साबित करने के लिए कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है कि इम्पैक्ट और हेट स्पीच में क्या डिफरेंस है. वो तुरंत हो रहा है, वो मिनटों में हो रहा है. फिर भी उस पर नहीं हो रहा है क्योंकि एट वन पॉइंट ऑल्सो to self-reflect a little bit, it's not because of the civil service or the police or the judges as well. We as the society and even the civil society is quite ignorant of what's happening. We aren't quite aware of who are these people. We are not quite aware of how this is spreading. Every working class... Choosing to be ignorant. We are choosing to be ignorant, and the kind of distribution of media is allowing that as well. लेकिन अगर हम देखें कि हमें पता नहीं है कि ये किस तरह से हो रहा है और क्या हो रहा है. बहुत से लोग ये स्पीचेस दे रहे हैं, उन्हें स्टेट का समर्थन ही नहीं है. इन स्पीचेस में बीजेपी के एमपीज एमएलए साथ में बैठते हैं, सामने होते हैं. कोल्हापुर में वायलेंस हुआ, उसके बाद नीतीश राणे बीजेपी के एमएलए निकल कर कहते हैं कि अब 14-15 साल के बच्चे, औरंगजेब की उन्होंने स्टेटस लगाया और एक बड़ी रैली हुई और उन्होंने कहा कि ये लोग औरंगजेब को वो समझ रहे हैं, इसलिए हमें ख़तरा है और हर हिंदुओं को तलवार उठानी चाहिए. एक बीजेपी एमएलए ये कह रहे हैं और एक न्यूज़ चैनल पर जाके नेशनल टेलीविज़न पर भी वो ये कह रहे हैं. स्टेट में उनकी सरकार है, सेंटर में उनकी सरकार है, फिर भी इस तरह का वायलेंस कोई फ्रिंज नहीं कर रहा है. ये खुद बीजेपी कर रही है और हमें ये स्ट्रक्चर्स इस वक्त समझ नहीं आ रहे. सर ऑल्सो स्पोक अबाउट हाउ हमें जो पूर्वाग्रह है उसे मिटाने की ज़रूरत है. ये पूर्वाग्रह अगर हम मिटाने लगे कि मुसलमान गौ मांस नहीं खाते, इसका मतलब ये है कि हम लेजिटिमाइज एक तरह से उन्हें करने दे रहे हैं कि गौ मांस खाने वालों को मारना एक तरह से जायज़ है. हम बार बार उनको जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि ये गौ मांस नहीं खाते. मेवात में ये गौ पालन करते हैं, मेवात में जो लोग मर रहे हैं वो दरअसल गौ पालन करते. तो क्या अगर वो नहीं कर रहे होते, तो क्या अगर लोग खा रहे होते, क्या ये हमें इजाज़त देता है कि उन्हें कुचल कर मार दिया जाए? तो हमारी भी कुछ कहीं कहीं लेवल पर हम
उसे ढंग से नहीं समझ पा रहे और उसको आर्ग्यू नहीं कर पा रहे, क्योंकि ऑन द ग्राउंड इट इज़, उन्हें पूर्वग्रह से उन्हें लेना देना नहीं है। स्टेट इम्प्यूनिटी उनके पास है, हर चीज़ उनके पास है, एक बहुत स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज तरीके से ये हो रहा है, और हम, मुझे लगता है कि बहुत कम पड़ रहे हैं इस चीज़ को समझने में, और उस पर एक्शन लेना तो फिर बहुत एक दूर की बात हो जाती है। सॉरी फॉर टेकिंग। मैं इन सारे केसेस में मीडिया पे बात करना चाहता हूं, क्योंकि जब भी इस तरह का कोई केस आता है तो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया का एकदम पूरा कैरेक्टर बदल जाता है, वो अलग तरह के रोल में चला जाता है, और उसका रिपोर्टर ऐसा लगता है कि वो वहाँ जाता है और वो ख़ास तरह के कैरेक्टर ढूंढता है जिससे इस आग में और ज़्यादा घी और पेट्रोल डाला जा सके। मैं आप लोगों के सामने बैठा हूँ और मेरे हाथ में ये फ़ोन है, मैं इसी से सारी स्टोरीज़ करता हूँ, चाहे मुझे राजस्थान जाना हो, चाहे मैं पुरोला जाता हूँ, इसी फ़ोन से करता हूँ। और जब मैंने उत्तरकाशी की स्टोरी की थी या जब मैंने गौरक्षकों की स्टोरी की थी, उत्तरकाशी की स्टोरी रात में पब्लिश हुई सुबह 8 बजे। 1.5 किलोमीटर का वो शहर है और मैं 5 दिन से उस शहर में था, तो लगभग सब जानते थे मुझे, चाहे वो बीजेपी के लीडर्स हों या लोकल जर्नलिस्ट हो, सब जानते थे। सुबह तक वहाँ के लोकल व्हाट्सएप ग्रुप में वो खबर वायरल हो चुकी थी और मेरा फ़ोन बजना शुरू हो चुका था 8:30 बजे तक। मुझे सब कुछ 15 मिनट में पैक करके वहाँ से निकलना पड़ा, क्योंकि मुझे पता था कि अगर भीड़ आ गई तो यहाँ की पुलिस मुझे नहीं बचा पाएगी, मेरा निकलना ही सबसे बेहतर होगा। वहाँ बहुत सारे जर्नलिस्ट थे जो रुके हुए थे, जो लगातार टीवी पे आ रहे थे और जो इस तरह की बातें फैला रहे थे। तो मेरा कंसर्न ये है कि हम इतना करेज तो दिखाते हैं, स्टोरीज़ भी लाते हैं, और एक इतने बड़ा नैरेटिव जो जिसमें कह सकते हैं कि स्टेट से लेके सब कुछ शामिल है, उस नैरेटिव को बस्ट करते हैं एक मोबाइल के ज़रिए। ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि मीडिया का जो मॉडल, मेन स्ट्रीम जिस मॉडल पे काम करता है, उस मॉडल पर हम काम नहीं करते। उसका जो मॉडल है वो पूरी तरह से विज्ञापन पर बेस्ड है, एडवर्टाइजमेंट पे बेस्ड है, जिसकी वजह से वो कॉरपोरेट और गवर्नमेंट पर कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है। हम जहाँ काम करते हैं वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है और वो पूरी तरह से व्यूवर के सपोर्ट से चलता है, इसलिए इतना फ्रीली काम करते हैं। तो अगर आप लोग सही खबरें और सही चीज़ें जानना चाहते हैं और चाहते हैं कि इस तरह के नैरेटिव बस्ट हों और एक जर्नलिस्ट फ्रीली होकर काम करे, तो आपको इस मॉडल की तरफ देखना होगा। चाहे वो जो भी ऑर्गेनाइजेशन विज्ञापन फ्री है, एडवर्टाइजमेंट फ्री है और इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है, तो उसको सपोर्ट ज़रूर करें ताकि इस तरह के नैरेटिव और तमाम चीज़ों के सच तक हम लोग जा सकें। I just want to repeat a point which I don't know whether I could effectively make, was that the valorization of the nation state more than respect for the republic, the nation state is steeped in hatred, and therefore its valorization automatically infects all the subjects rather than citizens with hate. So hate becomes a part of the identity of both the individual and of the state. And unless somewhere we completely, politically, socially, culturally confront this whole idea, both in the short term and in the long term, I think Karnataka was a very good example of how, even in the short term, how in the process of 8 weeks, the involvement of 2 major civil society movements actually managed to contain the whole process of the whole Hindutva laboratory which Karnataka was fast becoming. At the social and cultural level, one of the things I feel strongly about is that the diminution of the liberal arts over a techno-economistic thing of both of education and of the view of the model of the state. Today we respect entirely this. I was recently in our National Academy of Administration, and I found that the entire emphasis now
is on a completely techno-economistic karma yogi, rather than someone who critically questions or analyzes or thinks for himself. So somewhere we have to look at re-educating people culturally, and cultural literacy of a kind which is feminized, which works on feminine values. And I think the Bharat Jodo Yatra was a very significant effort in that direction, but didn't go deep enough and needs to be substantially enriched. I think that there is some hope in reviving that whole idea, and of course in resurrecting Gandhi all over again. I think the contemporary relevance of Gandhi has to be more and more described, more than that of any other icon. जॉन, आपका जो सवाल है वो हमारा भी सवाल है, और हम अभी बात करते हैं कि किताबों में किस तरह की तब्दीलियाँ की गई, स्कूल की किताबों में किस तरह की तब्दीलियाँ की गई और उसको लेकर फ़िक्र ज़ाहिर करते हैं। लेकिन अगर हम आज़ादी के बाद से लेकर, अगर आज़ादी को एक 1947 और उसके बाद की स्कूलिंग को हम बहुत ध्यान से देखें, तो यह मकसद कभी भी नहीं रहा कि स्कूलिंग उस चीज़ को एड्रेस करे जिसको आप एक दूसरे के प्रति पूर्वाग्रह कहते हैं। इसलिए अगर आप पुरानी किताबों को भी देखेंगे, जो किताबें उस वक्त चल रही थी जब सेक्युलर हिंदुस्तान था, तो उन किताबों में भी वो पूर्वाग्रह उतने ही ज़्यादा हैं। मैं सिर्फ एक उदाहरण दूंगा आपको। मैं एक सभा में था हैदराबाद में, और उस सभा में वक्तव्य के बाद एक युवती खड़ी हुई जिनकी उम्र 25 से 30 साल के बीच होगी, और उन्होंने कहा कि मैं जब अपने स्कूल में थी तभी मैं समझ गई थी कि 2014 होगा। उसके बाद एक शख्स खड़े हुए जिनकी उम्र मेरी उम्र जैसी थी, और उन्होंने कहा कि मैं अपने स्कूल में जिस एक घंटी से सबसे ज़्यादा घबराता था वो मध्यकालीन भारत की घंटी थी, क्योंकि उसमें मुझे लगता था कि सारी निगाहें मेरी तरफ हैं। क्योंकि जिस तरह मध्यकाल को पढ़ाया जाता था, मुसलमान आक्रांत था और बाकी तमाम लोग, मैं हैदराबाद की एक मीटिंग की बात कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये प्राय सही है। तो हमारा जो सहज बोध या कॉमन सेंस बना, उस पर हमने कभी विचार नहीं किया। मैं अभी सरस्वती शिशु मंदिरों की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सामान्य सरकारी स्कूलों की बात कर रहा हूँ। मैं सामान्य स्कूलों की बात कर रहा हूँ और ये प्रश्न किया जाना चाहिए कि सेक्युलर सरकारों के रहने के बाद ऐसा कैसे हुआ कि ज़्यादातर शिक्षक उस तथाकथित सांप्रदायिक विचार को पहुंचाते रहे लोगों के बीच, और जो पूरी पीढ़ियां निकली वे इतिहास की उस समझ के साथ निकली जो अभी भारतीय जनता पार्टी के इतिहास की समझ को मजबूत करती है। तो ये एक प्रश्न है, और हमारे मित्रों ने पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार और दूसरी किताबों का अध्ययन करके पाया कि ये सारे पूर्वाग्रह उनमें भरे हुए थे। तो ये मैं स्कूलों की बात कर रहा हूँ। उसके अलावा जो एक पैरेलल एजुकेशन सिस्टम है, जो फिल्मों का है, बाकी तमाम का है, वो इन सारे पूर्वाग्रहों को डाल रहा था लगातार 70 साल से, और इसको हमने बहुत गंभीरता से नहीं देखा, क्योंकि हमें एक इत्मीनान था कि ठीक है एक सरकार है, और हमने इस बात पर भी कभी गंभीरता से विचार नहीं किया, जिसको जायरुस बानाजी कहते हैं, कि दरअसल इस देश में एक सीरियलाइज्ड जेनोसाइड चलता रहा है। तो अगर 1961 को हम देख लें, जबलपुर वायलेंस, उसके बाद से पूरी सीरीज़, तो हमने कभी एड्रेस नहीं किया कि किसी भी बड़ी हिंसा की घटना के बाद न तो गुनहगारों की शिनाख्त हुई, न उनको कभी कायदे की कोई सज़ा हुई। तो इस बात को एडमिट करना बहुत ज़रूरी है कि इस चीज़ को हमने होने दिया, और अब इस हालत में है कि
ये चीज़ हम पर शासन कर रही है। आपका ये कहना था कि ये सारी फिल्में और इस तरह की चीज़ें दिखाई जाएं और ये बहुत ज़रूरी है, करना चाहिए। मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं सामाजिक मनोविज्ञान का अध्येता नहीं हूँ, कि किस तरह उस सामाजिक मनोविज्ञान को बदला जा सकेगा और क्या किया जाए। और ख़ासकर दो स्थितियाँ होती हैं जिसमें हम एक ऐसी स्थिति में हों जब हम ये चर्चा कर सकें, लेकिन हम एक बहुत ही असामान्य स्थिति में हैं, एबनॉर्मल स्थिति में हैं, जहाँ इस चर्चा को करने के लिए जगह नहीं है ना। जैसे दिल्ली में ही इस फिल्म को दिखाने के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा जगह नहीं है। हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये फिल्म कहीं नहीं दिखा सकते, किसी कॉलेज में नहीं दिखा सकते, हम जामिया में नहीं दिखा सकते, हम शायद JNU में भी नहीं दिखा सकते, हम किसी यूनिवर्सिटी में कहीं भी नहीं दिखा सकते। तो एक बहुत ही एबनॉर्मल स्थिति में अब हम रह रहे हैं। गांव में अगर आप दिखाने जाएंगे तो मुझे पता नहीं, कोई बजरंग दल, कोई हिंदू सेना, कोई दूसरी सेना का कोई वहाँ पहुँच जाए और एक नई हिंसा पैदा हो जाए। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन हम जिस स्थिति में हैं उसको समझने की ज़रूरत है। आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जिसको आप कहते हैं कॉन्सेप्ट, तो वो कॉन्सेप्ट क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड का? वो एक नाम है ना, एक एम्प्टी शेल है, और उस खाली खोल में आप मानी भर रहे हैं। मानी कैसे भरे जाते हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड की सबसे ताज़ा बात किस तरह से की गई, तो आप उस संदर्भ को हटा नहीं सकते। प्रधानमंत्री अमेरिका की यात्रा से पहुंचे, पहला बड़ा भाषण उन्होंने जो दिया उसमें उन्होंने 3-4 बातें कही। उन्होंने कहा कि मुसलमान बहनों के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है और मुसलमान बहनें मुझे अपना भाई मानती हैं, मैंने ट्रिपल तलाक का कानून लाया, उससे उनका बहुत भला हुआ, तो मैं उनका भाई हूँ। दूसरी बात उन्होंने कही कि मुसलमान पसमानदा लोगों के साथ बहुत अत्याचार होता है और उनको न्याय दिलाना बहुत ज़रूरी है, वह काम भी किया जाना चाहिए, लोग अपीजमेंट के नाम पर उनके साथ अत्याचार कर रहे हैं। और तीसरी बात उन्होंने कही कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परिवार में 2 तरह के कानून एक परिवार में नहीं चल सकते। और उसके फ़ौरन बाद जो बैठक हुई पार्लियामेंट्री पैनल की, उसके मुखिया ने कहा कि हम विचार कर रहे हैं कि इनसे ट्राइबल्स को हटा दिया जाए, ट्राइबल्स इसमें नहीं रहेंगे। फिर नागालैंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि हमको विश्वास दिलाया गया है कि उत्तर पूर्व के जितने भी ट्राइबल्स हैं वो इसमें नहीं रहेंगे। तो फिर कहा गया कि गोवा के लोगों को भी शायद इससे बाहर कर दिया जाएगा। तो फिर बचा क्या, है ना? हम और आप ये समझें कि किसी भी एक विचार को, जो एक अमूर्त विचार है, उसमें कोई भी अर्थ भर दिया जा सकता है। तो अभी जो अर्थ भरा जा रहा है वो ये कि मुसलमानों को बहुत दिन से बहुत सारे विशेषाधिकार मिले हुए थे, अब उनसे वो विशेषाधिकार छीनने का वक्त आ गया है और यूनिफॉर्म सिविल कोड उसका तरीका है। तो ट्राइबल्स को हटाओ, उनको हटाओ, उसको हटाओ। असल चीज़ है मुसलमानों को डिसिप्लिन करना, और उसका ये तरीका। तो अवधारणात्मक स्तर पर आप कहेंगे कि नहीं नहीं, ये तो जेंडर जस्टिस की बात है, लेकिन जो मामूली सवाल कोई नहीं करता ट्रिपल तलाक कानून के बाद, और ये सबसे मामूली सवाल है कि ठीक है आपने ट्रिपल तलाक का कानून लाया, हालांकि सुप्रीम कोर्ट कह चुका था कि ट्रिपल तलाक अवैध है, अब कानून ले आए। कानून क्या है कि कोई अगर तलाक 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 कहता है उसे 3 साल की सज़ा हो सकती है। तलाक 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 कह के बीवी को छोड़ने का मतलब क्या है? एक प्रक्रिया के बिना पत्नी को छोड़ना। उसके लिए एक मुसलमान मर्द को 3 साल की सज़ा होगी, लेकिन बहुत सारे हिंदू मर्द बिना तलाक बोले पत्नियों को छोड़ रहे हैं। उनके लिए कोई कानून है जिसमें 2 दिन की भी सज़ा हो, या बाकी लोगों के लिए? तो फिर ये ट्रिपल तलाक मुसलमान औरतों के भले के लिए लाया गया था या मुसलमान मर्दों को क्रिमिनलाइज करने के लिए लाया गया था? और ये हिंदुओं को एक खुशी देने के लिए लाया गया था कि देखो अब हम कितनी चालाकी से काम कर रहे हैं। तो अभी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि ये जो चालाकी घुस गई है हिंदुओं के दिमाग में और एक रेडिकलाइजेशन हो रहा है हिंदुओं का, उसके बारे में हम लोग विचार करें। ये रेडिकलाइजेशन, इस रेडिकलाइजेशन की प्रोसेस को हम कैसे समझते हैं और हिंदुओं का डी रेडिकलाइजेशन कैसे होगा, उनको डी रेडिकलाइज कैसे किया जाएगा।
आपके 12 साल, 13 साल, 14 साल, 16 साल के हिंदू बच्चे रामनवमी के जुलूसों में हैं, उनके हाथ में तलवार हैं, उनके ज़ुबान पर गालियां हैं, और एक लाखों की आबादी रेडिकलाइज हो रही है। लाखों की आबादी रेडिकलाइज हो रही है। ये कितनी भयानक बात है, अगर ये समाज नहीं समझेगा तो ये कहाँ पहुँचेगा कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन हम तमाम लोगों को तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। जो कि चिंतनीय है हम सभी के लिए, और इसके लिए पूरा दिन भी कम पड़ जाए, पर हम तय समय से आगे चल रहे हैं, इसलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं धन्यवाद करूंगा मंच पे आसीन सभी मान्यगण स्पीकर्स का, कि उन्होंने अपने नज़रियात, अपने मुद्दे, अपने विचारों को रखा। साथ ही आप सभी का धन्यवाद कारवान मोहब्बत की तरफ से करना चाहूँगा कि इस मौसम सिर्फ बरसात ही नहीं बल्कि जो राजनीतिक रूप से भी चल रहा है उसको मद्देनज़र रखते हुए आप अपने समय, कीमती समय में से अपना समय निकाल कर आए। और इन चुनौतियों का शायद हम जो संविधान में, हमारे भारतीय संविधान में हमको प्रेरणा दिया गया है, और बंधुता, मोहब्बत, उसी से शायद हम सबक लेते हुए आगे बढ़ पाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।